Good morning, children. Today I'll explain you all the poem Magwati, the Mysterious Cat of your textbook Honeydew Unit 3. So let's start with it. Children, before I had explained you an interesting poem, The Ant and the Cricket. Hope you all must have enjoyed it. Similarly, today this poem is also very interesting. It is beautifully written and rhythmically skimmed by the famous writer T.S. Eliot. He has described the poem in such an interesting way that it does not only make us feel so surrounded with the poem but also arises curiosity in our stomach to read such poem मोर ऑफन्स मीन्स कि वो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं जैसे जैसे हम इस पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इतनी अच्छे से उनकी रैमिकली स्कीम पोएम्स होती हैं। तो मिस्टर T.S. Eliot इज़ अ cat lover and tries to portray his imagination about a mystery cat. वो एक cat lover हैं और एक उन्होंने अपनी imagination बनाई हुई है mystery cat के लिए, तो वो ही यहाँ पर इस poem के through वो portray करना चाहते हैं. He starts by asking us, do you have a pet cat? Have you ever noticed anything mysterious about it? It is not easy to say whether every cat is a mystery, but Magwati is one for sure. What is it that makes him a perfect mystery cat? Read the poem to know why. तो here the poet is asking the question कि क्या कभी आपने कोई mysterious cat देखी है? लेकिन वैसे ऐसा नहीं है कि हर cat mysterious ही होती है, वो दोबारा अपने आप से ही आंसर दे रहे हैं. तो कहते हैं कि क्या ऐसा कुछ है कि जो एक cat को perfectly mystery बनाती है. So now he said कि let's find out by reading the poem why we are saying this cat Magwati as the mysterious cat. He is saying for us this cat is the mysterious cat. So let's start with the stanza 1. Magwati is a mystery cat. He is called the hidden paw for he is the master criminal who can defy the law. उन्होंने कहा कि ये he is called the hidden law. Hidden paw means कि उन्होंने उसके ऊपर stress दिया. Dramatically he portrays the cat that he has the ability not to leave a single clue behind. वो कोई भी clue पीछे छोड़ता नहीं है चाहे आप कितना ही उसको ढूंढने की कोशिश करो. For he is the master criminal who can defy the law. बहुत अच्छे से वो laws को तोड़ना और चकमा देना जानता है. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad despair. Bafflement मतलब परेशानी का कारण है किसके लिए? Scotland Yard, the headquarters of London Police Office, जहाँ पे flying squad disappear. The flying squad a group of police और soldier ready to move into the action quickly. लेकिन ये उसके बीच कब्जे में नहीं आता. Like the Raw जो 99% तक अपने पूरे केसेस सॉल्व करते हैं, लेकिन when you reach the scene of crime, Magwati is not there. एक जैसे ही वो भी वहाँ पे उसके क्राइम सीन तक पहुँचते हैं तो ये Magwati ऐसा मिस्ट्री कैट है कि वो तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है चाहे वो कितनी ही कोशिश करें उसको पकड़ने के लिए. तो वो भी उनके लिए एक रहस्य बना हुआ है. Then comes stanza 2. Magwati, Magwati, there is no one like Magwati. He's broken every human law. He breaks the law of gravity. जो भी human laws होते हैं उनको सबको तोड़ता है. Law of gravity भी उसको भी वो तोड़ देता है. What is the law of gravity? To pull the things down. But Magwati is totally different from that. Very quick and flexible like thunderbird. His power of levitation would make a fakir stare, and when you reach the scene of crime, Magwati is not there. कि जो उसकी power of levitation हवा में तैरने की जो उसकी पावर है वो एक फ़कीर को भी हैरान कर देती है. फ़कीर मैजिशियन, अ वर्ड यूज फॉर द मैजिशियन. तो पोएट डिपिक्ट्स मैग्वटी मोर सुपीरियर देन द मैजिशियन. उन्होंने कहा मैग्वटी जो है मैजिशियन से भी सुपीरियर है. फ़कीर शॉक रह जाते हैं विद द पावर ऑफ लेविटेशन लाइक एयरप्लेन फ्लोइंग इन द एयर. You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, Magwati is not there. चाहे आप उसे बेसमेंट में ढूंढो चाहे आप उसे हवा में ढूंढो, लेकिन ये बिल्कुल फॉर श्योर है कि मैं आपको पूरी गारंटी से कह सकता हूँ कि मैग्वटी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा. वो तुरंत वहाँ से गायब ही होगा. I tell you once and once again, Magwati is not there. मैग्वटी वहाँ से भाग जाएगा. वो आपके कब्जे में या किसी के भी या स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस के कब्जे में वो नहीं आएगा. Then comes stanza 3. Magwati is a ginger cat. He is very tall and thin. You would know him
if you saw him for his eyes are sunken in. उन्होंने कहा मैकबटी एक जिंजर कैट है. जिंजर कॉशियस कैट, सावधान. कैसी कैट है? अ कैट दैट कैन सर्वाइव ऑन अ लेफ्ट ओवर फूड. तो यूजुअली गिवन अप बाय द पीपल अराउंड हैविंग, तो जो वो लोग उसको खाते हैं चीज़ें और छोड़ देते हैं, तो वो उस पर भी सर्वाइव कर सकती है. हैविंग अ वेरी टॉल एंड थिन लेग्स. You must have seen the Tom of Tom and Jerry show. So McVitie is just like that Tom only. His eyes are sunken in अंदर धसी हुई हैं. His brows is deeply lined with thoughts. His head is highly domed. आंखें उसकी हमेशा चढ़ी रहती हैं, आईब्रोज उसकी, और वो हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ सोच रहा है. और उसका सिर एक डोम के गुंबद की तरह गोल है. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. whiskers भी उसके बिल्कुल कॉम नहीं कर रखे हैं. उसका कोट बिल्कुल डस्टी है. He sways his head from side to side with movement like a snake. And when you think he is half asleep, he is always wide awake. अपना जैसे स्नेक होता है, अपनी बॉडी को इधर से उधर घुमाता है बिल्कुल कॉशियसली, इसी तरह से वो भी अपना हेड को ऐसे ऐसे घुमाता है. और जब आपको लगता है कि मैकबटी सो रहा है, तो वो हमेशा जगा हुआ होता है. जब आपको लगे कि हाँ वो उसकी आंखें आधी बंद हैं और वो सोया हुआ है, लेकिन वो सोया हुआ नहीं होता है, वो बिल्कुल जगा हुआ होता है. और कॉशियस कैसे रहता है? जैसे कि एक स्नेक होता है, उसकी जिस तरह से स्नेक की बॉडी मूव करती है, उसका हेड भी इसी तरह से साइड बाय साइड मूव करता है. बिल्कुल सावधानी से वो रहता है. सो चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव सीन टॉम ऑफ टॉम एंड जेरी शो. उसमें भी ऐसे दिखाया, कैट बहुत ही कॉशियस कैट दिखाई है. तो हेयर मैकबटी एज कम्पेयर टू दैट कैट, कि वहाँ पे जो जिस तरह से टॉम है वो अपने सिर को हिलाता है, और यहाँ पर भी ये मैकबटी भी बहुत ज़्यादा कॉशियस रहता है और अपने सिर को इधर उधर हिलाता रहता है. तो then comes to next stanza. Stanza 4. McVitie, McVitie, there's no one like McVitie, for he is a fiend in feline shape, a monster of depravity. तो जैसा मैकबटी है उसके जैसा कोई है ही नहीं. फॉर ही इज़ अ फिन. फिन मतलब डेविल. एक डेविल है इन अ फेलाइन शेप. फेलाइन शेप बिलोंग टू, रिलेटेड टू और अ कैट फैमिली. मतलब कैट फैमिली कैट की तरह ही है, लेकिन है एक मॉन्स्टर. मॉन्स्टर ऑफ डेप्राविटी. डेप्राविटी मीन्स कि जो फुल ऑफ करप्शन है, भ्रष्ट है बिल्कुल. हर तरह से भ्रष्टाचार वो करता है, मोरल करप्शन उसके अंदर है. यू मे मीट हिम in a by street, you may see him in a square, but when a crime is discovered, then McVitie is not there. आपने उसको स्ट्रीट्स में देखा होगा, कभी इधर उधर भी देखा होगा. in a square usually used for houses in United Kingdom, as T.S. Eliot the poet belongs to US, so that's why he has used this term square over here. तो उन्होंने कहा कि आप कुछ भी देखो, वैसे मैकबटी आपको दिख जाएगा, लेकिन जब आप क्राइम सीन में पहुंचना चाहेंगे, व्हेन यू वांट टू डिस्कवर द क्राइम डन बाय मैकबटी, मैकबटी इज नॉट देयर. मैकबटी वहाँ से गायब हो जाता है. तो चिल्ड्रेन, आई होप यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड द पोएम. So please read the poem again and try to understand it. I am ending with the poem explanation here. Thank you. Have a nice day.